ٹھیک ہے, چلیں رستم بھائی بسم اللہ کریں. زیادہ تر لوگ نا وہ جو پوئٹس ہیں اگر اپنے آپ کو میوٹ رکھیں تو زیادہ اچھا ہے میرے خیال سے نا, کہ اس سے جی ہم لوگ شمیم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں ججز صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس مشاعرے میں آج ججز کی ذمہ داری قبول کی, اور ہمارے ریحان صاحب کا مہمان خصوصی ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمیں دیے. اور میں دونوں ٹیموں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں تک پہنچنے میں ان لوگوں نے بہت محنت کی, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ اینڈ گڈ لک. جیتنا ہارنا تو لگا رہتا ہے, لیکن ندا فاضلی صاحب کا ایک مصرع کتنا اچھا ہے, ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. تو انشاءاللہ ہار جیت کسی کی بھی ہو یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سب اپنا اپنا کلام پیش کریں گے. جی جی. اور ہمارے انگلینڈ کی ٹیم کی صدارت جو ہے ہماری بہت اچھی شاعرہ محترمہ مہجبیں غزل انصاری صاحبہ فرمائیں گی, اور نظامت کی ذمہ داری تسنیم حسن صاحبہ فرمائیں گی. تو میں تسنیم حسن صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں, تشریف لائیں اور اسٹیج کو سنبھالیں اور مشاعرے کا آغاز کریں. بہت بہت شکریہ پرویز مظفر صاحب. اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے, اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے, کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے. تو یہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے اس شعر دوسرا مصرع کچھ کافی سالوں بعد کہا, مگر شمیم صاحب نے خواب دیکھا آئی پی ایل کا, اور اس خواب کو پائے تکمیل تک بلا تعامل پہنچایا. اور بہت خوش نصیب ہیں ہم لوگ یو کے کی ٹیم کہ ہم حصہ بنے ہیں آئی پی ایل کا, اور یہ منظر شبتاب دیکھ رہے ہیں. تو مبارکباد ٹیم انگلینڈ کو, سیمی فائنل تک پہنچ گئے ہیں ہم لوگ. اور اب میں بلا تعامل آغاز کرنا چاہوں گی مشاعرے کا. اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ دامن وقت میں تنگی کے باعث 6 منٹ جو ہیں وہ ہم کو تفویض کیے گئے ہیں, ہمارے حصے میں ہیں. اور وہ کہ 8 شاعر تو نہیں ہیں, آج 7 موجود ہیں, لیکن بھائی ہم سروں کو گنا نہیں کرتے, تولا کرتے ہیں. تو امید ہے کہ ایک اچھی نشست جو ہے وہ رہے گی ہماری جانب سے. چلیے میں آغاز کرتی ہوں نعت کی کچھ اشعار, اور اس کے بعد کچھ اشعار اور غزل کی کچھ شعر میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی. ستارہ لفظ بنے فکر آسمان بنی, ستارہ لفظ بنے فکر آسمان بنی, بس ان کے نام سے مدحت میرا بیان بنی, بس ان کے نام سے مدحت میرا بیان بنی. اور وہاں کے ذروں سے خورشید بن گئے کتنے, وہاں کے ذروں سے خورشید بن گئے کتنے, وہاں کی گلیوں کی آواز آسمان بنی, وہاں کی گلیوں کی آواز آسمان بنی. کتاب نور جو سینوں میں حفظ رہتی ہے, کتاب نور جو سینوں میں حفظ رہتی ہے, صدائے فتح مبین رحمتوں کی کان بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقصد ہے کہ درود پڑھ کے میں سوتی ہوں رات میں تسنیم, درود پڑھ کے میں سوتی ہوں رات میں تسنیم, نبی کی ذات میرے سر پہ سائبان بنی, نبی کی ذات میرے سر پہ سائبان بنی. ستارہ لفظ بنے فکر آسمان بنی, بس ان کے نام سے مدحت میرا بیان بنی. اور 2 اشعار کے بجھے چراغ کو یہ بات اب کھٹکتی ہے, بجھے چراغ کو یہ بات اب کھٹکتی ہے, اندھیرا ہوتے ہی پرچھائیں کیوں بھٹکتی ہے, اندھیرا ہوتے ہی پرچھائیں کیوں بھٹکتی ہے. اور میں پوری ہوں تو گواہی میری ہے آدھی کیوں, پوری ہوں تو گواہی میری ہے آدھی کیوں, بسا کے عقل اسی بات پہ اٹکتی ہے,
की अक्ल इस बात पे सटकती है। शुक्रिया बहुत बहुत। और एक ही काम तो जीने के हुनर से देखा, एक ही काम तो जीने के हुनर से देखा, मैंने दुश्मन को मोहब्बत की नजर से देखा, मैंने दुश्मन को मोहब्बत की नजर से देखा, और मशवरा आपका तस्लीम किया है मैंने, मशवरा आपका तस्लीम किया है मैंने, अपना जलता हुआ घर आपके घर से देखा, अपना जलता हुआ घर आपके घर से देखा, एक काम तो जीने के हुनर से देखा। और गजल के कुछ अशार हैं कि तेरी मिसाल आंखों में तमसील हो गई, तेरी मिसाल आंखों में तमसील हो गई, धड़कन लहू के रंग में तब्दील हो गई, धड़कन लहू रंग में तब्दील हो गई, और तेरी नजर की छाँव तो बादल से कम न थी, तेरी नजर की छाँव तो बादल से कम न थी, फैली मेरी जमीन पे मैं झील हो गई, फैली मेरी जमीन पे मैं झील हो गई, और कैसी बदन की कुर्बतें और कैसी चाहे वस्ल, कैसी बदन की कुर्बतें और कैसी चाहे वस्ल, जब रूह तेरी रूह में तहलील हो गई, रूह तेरी रूह में तहलील हो गई, और आंखों से एक आंसू हथेली पे आ गिरा, आंखों से एक आंसू हथेली पे आ गिरा, तीरा शबी में काफी ये कंदील हो गई, तीरा शबी में काफी ये कंदील हो गई। और शेर सुनिए कि नोके कलम पे आखिरी कतरा लहू का था, नोके कलम पे आखिरी कतरा लहू का था, टपका तो मेरी जात की तशकील हो गई, क्या कहने, बहुत अच्छे तस्नीम, बहुत अच्छे तशकील हो गई। शुक्रिया बहुत बहुत। और घर मेरा मेरे बच्चों की पहचान बन गया, घर मेरा मेरे बच्चों की पहचान बन गया, हर रस्म और रीत ही तब्दील हो गई, हर रस्म और रीत ही तब्दील हो गई, तेरी मिसाल आंखों में तमसील हो गई, धड़कन लहू के रंग में तब्दील हो गई। चलिए, मैंने इख्तिसार की जो रिवायत अब कायम की है, और उम्मीद है हमारे तमाम शुरा हज़रात जो है 6 मिनट की इस लेकिन अभी आपके पास 1 मिनट और है, अच्छा, मैं भी नजर घड़ी पे थी, तो इस चलिए मैं 1 मिनट में मजीद कुछ अशार सुना देती हूँ कि मैं तमाशाई थी तुझ जैसा तमाशा न मिला, मैं तमाशाई थी तुझ जैसा तमाशा न मिला, आईना हाथ में आया है तो चेहरा न मिला, क्या कहने, हाथ में आया है तो चेहरा न मिला, साथ जो गुजरा था लम्हा उसी लम्हे के लिए, साथ जो गुजरा था लम्हा उसी लम्हे के लिए, मुझे गिरती हुई दीवार का साया न मिला, मुझे गिरती हुई दीवार का साया न मिला, और दूर शाम गुर्बत मेरे हमराह चली आई है, शाम गुर्बत मेरे हमराह चली आई है, दूर तक सुबह वतन तेरा उजाला न मिला, सुबह वतन तेरा उजाला न मिला, और जिंदगी कौन हिसाबों में गुजारे तस्नीम, जिंदगी कौन हिसाबों में गुजारे तस्नीम, मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा मुझे क्या क्या न मिला, बहुत अच्छा, मैं तमाशाई थी तुझ जैसा तमाशा न मिला, ना हाथ में आया है तो चेहरा न मिला। शुक्रिया बहुत खूब। चलिए, हमारी टीम की खुशनसीबी रही है कि इंग्लैंड के
تمام بڑے بڑے شہروں سے ہمارے ساتھ شعراء شامل ہیں. اب میں جس مہمان کو دعوت دینا چاہوں گی، ان کی شاعری زمین سے جڑی ہے، مٹی کی مہک سے آراستہ ہے ان کی شاعری، اور وہ صرف اپنی ہی شاعری پہ فوکس نہیں کرتے بلکہ انہوں نے برطانیہ کے تمام شعراء کے کلام کو مجتمع کر کے کتاب تشکیل دی ہے. میں مدعو کرنا چاہوں گی منان قدیر منان کو، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پہلے ملے یا کسی کے بعد ملے، کسی کے پہلے ملے یا کسی کے بعد ملے، یہ کون چاہتا نہیں کھل کے اس کو داد ملے، تو کھل کر داد دیجیے. بہت نوجوان رستم بھائی، شاکر بھائی بھی آ گئے ہیں. رستم بھائی، شاکر بھائی شاعر منان قدیر منان. آئیے حضرت. احباب، تمام احباب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دو چار غزلوں کے چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. غزل کا پرتو نئی زمینوں سے جا ملا ہے. غزل کا پرتو نئی زمینوں سے جا ملا ہے، پتا چلا ہے سخن خزینوں سے جا ملا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. غزل کا پرتو نئی زمینوں سے جا ملا ہے، پتا چلا ہے سخن خزینوں سے جا ملا ہے. اور منافقوں کو سراہتا ہوں منافقت سے، منافقوں کو سراہتا ہوں منافقت سے، شریف شاعر بھی اب کمینوں سے جا ملا ہے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ایک اور تازہ غزل کے چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جی یہاں پہ تھوڑا سا سوری جی. اچھا، اس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ صرف اردو ہی شامل کر سکتے ہیں یا ہم پنجابی شاعری بھی شامل کر سکتے ہیں؟ صرف اردو ہے، صرف اردو، کیونکہ یہاں پر ججز نہیں ہیں. ججز جی. تازہ غزل کے چند شعر ہیں کہ ایسا نہیں ہے دوست کے سارے جہان کو، ایسا نہیں ہے دوست کے سارے جہان کو، میں دے رہا ہوں گالیاں ایک بدگمان کو. ایسا نہیں ہے دوست کے سارے جہان کو، میں دے رہا ہوں گالیاں ایک بدگمان کو. اور شعر دیکھیے گا کہ فی الحال میں نے عشق پہ کرنا نہیں سخن، فی الحال میں نے عشق پہ کرنا نہیں سخن، فی الحال روکتا ہوں میں اس داستان کو، فی الحال روکتا ہوں میں اس داستان کو. اور موسم ہے دل فریب مگر ساتھ تم نہیں. یہ شعر یو کے والوں کے لیے، پاکستان انڈیا کے لیے نہیں ہے. موسم ہے دل فریب مگر ساتھ تم نہیں، جی چاہتا ہے آگ لگا دوں جہان کو. موسم ہے دل فریب مگر ساتھ تم نہیں، جی چاہتا ہے آگ لگا دوں جہان کو. اور میں کر رہا ہوں دوست محبت میں پیش رفت، میں کر رہا ہوں دوست محبت میں پیش رفت، اب سوچنا پڑے گا میرے خاندان کو. میں کر رہا ہوں دوست محبت میں پیش رفت، اب سوچنا پڑے گا میرے خاندان کو. اور ناکام ہو کے پہلی محبت میں صاحبان، ناکام ہو کے پہلی محبت میں صاحبان، دیتا ہوں مشورے میں نئے عاشقان کو. بہت شکریہ. کام ہو کے پہلی محبت میں صاحبان، دیتا ہوں مشورے میں نئے عاشقان کو. شعر دیکھیے گا دوستوں کے سنجیدہ لوگ دیتے ہیں جی بھر کے کوسنے، سنجیدہ لوگ دیتے ہیں جی بھر کے کوسنے، ٹک ٹاکروں کو اور نئے شاعران کو. سنجیدہ لوگ دیتے ہیں جی بھر کے کوسنے، ٹک ٹاکروں کو اور نئے شاعران کو. اور مقطع دیکھیے گا کہ منان یاد آ کے کوئی بار بار اب، منان یاد آ کے کوئی بار بار اب، مشکل بنا رہا ہے میرے امتحان کو. بہت شکریہ جی. منان کیا کہنے. اب آخر میں ایک غزل کے چند شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جی آتا ہوں. دکھ ہے کئی وبال مجھے نوچتے رہے، دکھ ہے کئی وبال مجھے نوچتے رہے،
वहशत में माहो साल मुझे नोचते रहे, दुख है कई वबाल मुझे नोचते रहे, वहशत में माहो साल मुझे नोचते रहे, और मैं एहतजाज कर न सका एहतराम में, मैं एहतजाज कर न सका एहतराम में, और उसके खदो खाल मुझे नोचते रहे, और उसके खदो खाल मुझे नोचते रहे। और शेर देखिएगा अहबाब कि जख्मी हुआ हूँ हुस्न के हाथों तमाम उम्र, जख्मी हुआ हूँ हुस्न के हाथों तमाम उम्र, कुछ लोग बेमिसाल मुझे नोचते रहे, कुछ लोग बेमिसाल मुझे नोचते रहे। और अहबाब की नजर एक शेर के उनको भी दे रहा हूँ दुआएं मेरे अजीज, उनको भी दे रहा हूँ दुआएं मेरे अजीज, जो करके पाए माल मुझे नोचते रहे, करके पाए माल मुझे नोचते रहे। या शहर में हसीन रुलाते थे रात दिन, या शहर में हसीन रुलाते थे रात दिन, या दश्त में गजाल मुझे नोचते रहे। अरे बहुत अच्छी। या शहर में हसीन रुलाते थे रात दिन, या दश्त में गजाल मुझे नोचते रहे। और मन्नान जो मिलाता रहा मेरी हाँ में हाँ, मन्नान जो मिलाता रहा मेरी हाँ में हाँ, उस शख्स के सवाल मुझे नोचते रहे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या कहने बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दोनों तरह के मिजाज की हमने शायरी सुनाई, हल्के फुल्के मिजाज की भी और संजीदा मिजाज की भी। चलिए अब चलते हैं, हम दोबारा लंदन की ही तरफ रहते हैं, और हमारे साथ जो शायरा मौजूद हैं बहुत मोतबर नाम हैं, बरतानिया के अदबी मंजरनामे पे कई बरसों से फाल हैं, किताबों की खालिक हैं, और पेशे के लिहाज से फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सीमी बरलास उनका नाम, और कहती हैं कि बर्फ में मुंजमद गुलाबों का क्या करूं मैं अधूरे ख्वाबों का। तो दावत कलाम देना चाह रही हूँ मोहतरमा सीमी बरलास साहिबा को। बहुत शुक्रिया तस्नीम, तमाम सामीन को और तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम। सदर की इजाजत से एक नज्म और दो गज़लें पेश करती हूँ। नज्म का उन्वान है बिन्ते हव्वा। क्या है? इससे बढ़कर नहीं जुर्म होगा कोई, इससे बढ़कर नहीं जुर्म होगा कोई, इससे बढ़कर नहीं कोई इल्जाम है, इससे बढ़कर नहीं जुर्म होगा कोई, इससे बढ़कर नहीं कोई इल्जाम है। मैं सफाई में अपनी भला क्या कहूँ, बिन्ते हव्वा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है। सफाई में अपनी भला क्या कहूँ, बिन्ते हव्वा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है। इसलिए तो ज़वाजों की जंजीर में, इसलिए तो रवाजों की जंजीर में मेरे अपनों ही ने मुझको बांधे रखा, इसलिए तो रवाजों की जंजीर में मेरे अपनों ही ने मुझको बांधे रखा। मुझको रिश्तों की मेज़ान पे नापता, मुझको हिस्सों की मेरास में बांटता। बाप भाई शौहर हो या बेटा मेरा, बाप भाई शौहर हो या बेटा मेरा, हर कोई एक कसौटी पे है जांचता। बाप भाई बेटा मेरा, हर कोई एक कसौटी पे है जांचता। मेरी अपनी जिंदगी ही नहीं, मेरी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं, मैं फकत दूसरों की जरूरत रही। कुछ पे दुनिया जमाने का इल्जाम है, कुछ पे दुनिया जमाने का इल्जाम है। इब्ने आदम का हर जुर्म मेरे नाम है, पे दुनिया जमाने का इल्जाम है। इब्ने आदम का हर जुर्म मेरे नाम है। मैं सफाई में अपनी भला क्या कहूँ, बिन्ते हव्वा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है। गजल का मतलब पेश खिदमत है जनाब सर की इजाजत से। तुम्हारी आंखों में ख्वाब बन के जो आ गई मैं, तो क्या करोगे। तुम्हारी आंखों में ख्वाब बन के जो आ गई, तो क्या करोगे। तुम्हारी धड़कन तुम्हारे दिल में समा गई मैं,
तो क्या करोगे? क्या वाह वाह वाह, क्या कहने? अभी तो साहिल की रेत पर मेरा नाम लिखकर मिटा रहे हो। अभी तो साहिल की रेत पर मेरा नाम लिखकर मिटा रहे हो। जहन के कागज पे नक्श अपना बना गई मैं, तो क्या करोगे? क्या कहने, वाह वाह। और चलो ये माना, बहुत खूब। चलो ये माना कि अपने दिल पे तुम्हें बहुत इख्तियार होगा। चलो ये माना कि अपने दिल पे तुम्हें बहुत इख्तियार होगा। तुम्हारे दिल को भी एक नजर में जो भा गई मैं, तो क्या करोगे? तुम्हारे दिल को भी एक नजर में जो भा गई मैं, तो क्या करोगे? जज़ाकल्लाह। और गुजार लोगे तुम अपने दिन दोस्तों में या महफिलों में छुप के। गुजार लोगे तुम अपने दिन दोस्तों में या महफिलों में छुप के। कभी अकेले में याद तुमको जो आ गई मैं, तो क्या करोगे? वाह वाह वाह। याद तुमको जो आ गई मैं, तो क्या करोगे? और निकाल सकते हो मेरी यादों के फूल अपनी किताब से तुम। निकाल सकते हो मेरी यादों के फूल अपनी किताब से तुम। जो बन के खुशबू तुम्हारे अतराफ छा गई मैं, तो क्या करोगे? वाह वाह बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहना। जो बन के खुशबू तुम्हारे अतराफ छा गई मैं, तो क्या करोगे? और तुम्हें तो है शौक शायद लहरों से खेलने का। तुम्हें तो सीनी है शौक शायद मचलती लहरों से खेलने का। जो रेत के सारे महल एक पल में ढा गई मैं, तो क्या करूँ? वाह। बहुत। एक और गजल, अगली गजल। जी आपके पास वक्त है, अभी 2 मिनट है। मेरी आंखों में तेरा अक्स नहीं मेरी आंखों में तेरा अक्स नहीं तू होगा। जैसे वीराने में महताब लबे जू होगा। आंखों में तेरा अक्स नहीं तू होगा। जैसे वीराने में महताब लबे जू होगा। और खिल रहे होंगे तेरी याद के गुलशन दिल में। खिल रहे होंगे तेरी याद के गुलशन दिल में। तू ही गुलशन के हर एक खुशबू तू ही गुलशन के हर एक फूल की खुशबू होगा। शुक्रिया। और खुद कलामी ये मेरी हद से गुजर जाएगी। खुद कलामी ये मेरी हद से गुजर जाएगी। मेरी खिलबत में मुखातिब जो मेरा तू होगा। खिलबत में मुखातिब जो मेरा तू होगा। और सुरमई शाम सिमट आएगी जब आंखों में। सुरमई शाम सिमट आएगी जब आंखों में। आंख में फैला हुआ रात का जादू होगा। सुरमई शाम सिमट आएगी जब आंखों में। आंख में फैला हुआ रात का जादू होगा। और भीगी आंखों में कोई अक्स कहाँ ठहरेगा। भीगी आंखों में कोई अक्स कहाँ ठहरेगा। भीगी आंखों में तो ठहरा हुआ आंसू होगा। आंखों में तो ठहरा हुआ आंसू होगा। क्या कहने। और मक्ता पेश है कि दिन तेरे कैसे करार आएगा दिल को सीमी। कैसे करार आएगा दिल को सीमी। दिल ये जंगल में भटकता हुआ आहू होगा। बहुत खूब सीमी, क्या निसाई लहजा और क्या खूबसूरत उनके अशार। अब मैं दावती कलाम देना चाहूंगी ऐसी शख्सियत को जिन्हें हम कहते हैं यॉर्कशायर अदबी फोरम के बानी हैं वो, और मीरे कारवां हैं और बहुत खूबसूरत लहजे की शायरी करते हैं। और आप सुनिएगा, उनका तरन्नुम भी खूब है, उनका कलाम भी खूब है, उनकी आवाज़ और अंदाज भी खूब है। बात में नरमी हो लहजा भी हो शीरीं आपका। बात में नरमी हो लहजा भी हो शीरीं आपका। मीर साहब गुफ्तगू में चाशनी इतनी तो हो। तो दावती कलाम देती हूँ मैं जनाब मोहतरम इश्तियाक मीर साहब को कि वो अपने खूबसूरत अशार हम तक और तरन्नुम भी। बहुत शुक्रिया तस्नीम। तमाम अहबाब की खिदमत में आदाब। सदर महफिल की इजाज़त से
गजल के चंद अशआर आपकी समाअतों की नजर करता हूँ। मतलब पेश करता हूँ कि मकी का दुख है कभी और कभी मकान का दुख। मकी का दुख है कभी और कभी मकान का दुख, बसा हुआ है मेरे दिल में एक जहान का दुख। वाह 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 वाह, क्या मकी का दुख खूबसूरत है, मतलब, वाह वाह। मकी का दुख है कभी और कभी मकान का दुख, बसा हुआ है मेरे दिल में एक जहान का दुख। वाह वाह, मैं उसके गोशाए दिल में कहीं हूँ या कि नहीं, मैं उसके गोशाए दिल में कहीं हूँ या कि नहीं, दुखा रहा है मुझे एक इसी गुमान का दुख। दुखा रहा है मुझे इसी गुमान का दुख। और शेर देखिए कि उसी के तीरे सितम का हदफ है अब मेरा दिल, उसी के तीरे सितम का हदफ है अब मेरा दिल, गजब है दिल के मकी को नहीं मकान का दुख। मकान मकी को नहीं मकान का दुख। बहुत शुक्रिया, पढ़िए भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत। उसी के तीरे सितम का हदफ है अब मेरा दिल, गजब है दिल के मकी को नहीं मकान का दुख। तुम्हारी पस्त रवि साफ कह रही है ये राज, क्या कहना, तुम्हारी पस्त रवि साफ कह रही है ये राज, तुम्हें जमीन का दुख है हमें जमान का दुख। वाह वाह वाह, मीर साहब क्या कहना, हमें जमान का दुख। सुभान अल्लाह। और मेरी उदासी का यूं पूछते हैं लोग सबब, मेरी उदासी का यूं पूछते हैं लोग सबब, कि जैसे फूल के दिल में है गुलसितान का दुख, कि जैसे फूल के दिल में है गुलसितान का दुख। क्या बात है। ये शेर देखिए कि बरस रहा है ये बादल के रो रहा है फलक, बरस रहा है ये बादल के रो रहा है फलक, जमी के वास्ते रहमत है आसमान का दुख, जमी के वास्ते रहमत है आसमान का दुख। और जो मेरे साए में चलता रहा है देर तलक, जो मेरे साए में चलता रहा है देर तलक, उसे खटकने लगा है मेरी उठान का दुख, खटकने लगा है मेरी उठान का दुख। और मक्ता पेश करता हूँ कि अब उनकी याद को दिल से भुलाएं कैसे मीर, अब उनकी याद को दिल से भुलाएं कैसे मीर, कि दिल को चीरता है रोज रफ्तगान का दुख, दिल को चीरता है रोज रफ्तगान का दुख। मकी का दुख है कभी और कभी मकान का दुख, बसा हुआ है मेरे दिल में एक जहान का दुख। गजल के चंद अशआर पेश करने जी शाद। कभी मतलब अर्ज करता हूँ कि कभी सितम से न उसके सितम रसीदा हुआ, कभी सितम से न उसके सितम रसीदा हुआ, न सर कशीदा हुआ मैं न सर खमीदा हुआ, सर कशीदा हुआ मैं न सर खमीदा हुआ। और शेर देखिए कि किसी की छाँव का कोना मुझे भी मिल जाए, किसी की छाँव का कोना मुझे भी मिल जाए, कि आज लगता है सूरज बहुत तपीदा हुआ, आज लगता है सूरज बहुत तपीदा हुआ। बहुत शुक्रिया। और ये मेरी हसरते दीदार कोई देखे तो, ये मेरी हसरते दीदार कोई देखे तो, मैं तेरी दीद में हूँ किस कदर नदीदा हुआ, किस कदर नदीदा हुआ। बहुत शुक्रिया। और मैं सर उठा के जिया हूँ बड़े वकार के साथ, मैं सर उठा के जिया हूँ बड़े वकार के साथ, कभी किसी के भी आगे न सर खमीदा हुआ। शेर देखें
کہ تو مجھ کو اتنی حقارت سے دیکھتا کیوں ہے، مجھ کو اتنی حقارت سے دیکھتا کیوں ہے، کوئی غلام نہیں میں تیرا خریدا ہوا، غلام نہیں میں تیرا خریدا ہوا۔ میر صاحب بہت شکریہ۔ اور تمام سر مقطع ایک شعر کہ تمام شہر ہے ماتم کنا اسی کے لیے، تمام شہر ہے ماتم کنا اسی کے لیے، یہ کون آج سرے شہر سر بریدہ ہوا۔ عرض کرتا ہوں کہ یہی تو میر علامت ہے خوش نصیبی کی، یہی تو میر علامت ہے خوش نصیبی کی، کسی کے ہاتھ سے دامن میرا دریدہ ہوا، دی ستم سے نہ اس کے ستم رسیدہ ہوا۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر ترنم سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ کہ کچھ دوستوں کو گھر پہ بلایا تھا ایک شام، دوستوں کو بلایا تھا گھر ایک شام، کچھ دوستوں کو گھر پہ بلایا تھا ایک شام، اور یوں لطف اہتمام اٹھایا تھا ایک شام، یوں لطف اہتمام، اب اس کے پاؤں ٹکتے نہیں ہیں زمین پر، اب اس کے پاؤں ٹکتے نہیں ہیں زمین پر، میں نے جسے زمین سے اٹھایا تھا ایک شام، بہت شکریہ، کہ اس پل کو آج تک میں نہیں بھول پایا میر، جس دم گلے سے اس نے لگایا تھا ایک شام۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ میر صاحب۔ اور اب ہم چلتے ہیں کہ ہماری بہت ہی محترم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، برمنگھم سے ان کا تعلق ہے، اور طرحی مصرے پہ کیا عمدہ گرہ لگاتے ہیں اور اشعار کہتے ہیں، اور پچھلی 2 نشستوں میں انہوں نے خوبصورت مرصع شاعری ہم تک پہنچائی۔ کہتے ہیں کہ انہی کا نام ابد تک رہے گا ایک مثال، انہی کا نام ابد تک رہے گا ایک مثال، جو لوگ کام کوئی بے مثال کرتے ہیں۔ دعوت کلام دینا چاہوں گی محترم فاروق نسیم صاحب کو، برمنگھم سے موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے تمام احباب، مہمان خصوصی اور ججز اور صدر صاحب کی اجازت سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ تو ایک قطع ارشاد ہے کہ میرے جذبوں کو ابھی اور جمع ہونے دو، میرے جذبوں کو ابھی اور جمع ہونے دو، میرے لفظوں کو ابھی حق کی زباں ہونے دو، میرے لفظوں کو بھی حق کی زباں ہونے دو، دل میں اٹھتی ہوئی ہر بات بیاں ہو کیسے، دل میں اٹھتی ہوئی ہر بات بیاں ہو کیسے، خانہ دل میں ابھی اور دھواں ہونے دو، ہونے دو۔ تو حاضرین، ایک غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ ارشاد۔
ہر شخص اسی گھر کو جلانے میں لگا ہے. ہر شخص اسی گھر کو جلانے میں لگا ہے جس گھر کو بڑا وقت بنانے میں لگا ہے. ہر شخص گھر کو جلانے میں لگا ہے جس گھر کو بڑا وقت بنانے میں لگا ہے. ہر گھر میں تو تخریب و عداوت کا ہے منظر. ہر گھر میں تو تخریب و عداوت کا ہے منظر. بس خون جگر سب کو منانے میں لگا ہے. بس خون جگر سب کو منانے میں لگا ہے. اور گل چینی سے پہلے ہے اجازت بھی ضروری. گل چینی سے پہلے ہے اجازت بھی ضروری. مالی کا بھی تن من تو سجانے میں لگا ہے. مالی کا بھی تن من تو سجانے میں لگا ہے. اور سرمایہ کا سودا ہے ہر ایک سر میں میرے دوست. سرمایہ کا سودا ہے ہر ایک سر میں میرے دوست. ہر شخص زر و مال بڑھانے میں لگا ہے. ہر شخص زر و مال بڑھانے میں لگا ہے. دنیا کی طلب بڑھ گئی جنت کی طلب سے. دنیا کی طلب بڑھ گئی جنت کی طلب سے. انسان تو دنیا ہی بنانے میں لگا ہے. دنیا ہی بنانے میں لگا ہے. اور شیر عرض ہے اب تو کسی قائد پہ بھروسہ نہیں باقی. اب تو کسی قائد پہ بھروسہ نہیں باقی. قائد ہے کہ بس نام کمانے میں لگا ہے. قائد ہے کہ بس نام کمانے میں لگا ہے. اور مختار سے دکھ درد سے بیزار ہے دنیا کا مسافر. دکھ درد سے بیزار ہے دنیا کا مسافر. اور روتوں کو نسیم آج ہنسانے میں لگا ہے. روتوں کو ہنسانے میں لگا ہے. روتوں کو نسیم آج ہنسانے میں لگا ہے. اور میں ایک نظم کے چند اشعار ذرا خواہشوں کا ہجوم ہے دل میں. خواہشوں کا ہجوم ہے دل میں. کتنے ارمان کسمساتے ہیں. میرے جذبات پھر ابھرتے ہیں. انگلیاں تھامتی ہیں جب بھی قلم. چند سطریں سفید کاغذ پر گرم جذبوں کو چھوڑ جاتی ہیں. اور بے ربط سے کبھی مصرے شکوہ کرتے ہیں نارسائی کا. ان میں کھو کر میں بے خیالی میں تیری زلفوں کو یوں سجاتا ہوں. ان میں کھو کر میں بے خیالی میں تیری زلفوں کو یوں سجاتا ہوں. جیسے خوابوں میں تاج بن جائے. جیسے خوابوں میں تاج بن جائے. کبھی کھو کر میں ان سرابوں میں. کبھی کھو کر میں ان سرابوں میں. کبھی ماضی پہ ڈالتا ہوں نظر. اپنی قسمت کے وار گنتا ہوں تاکہ تازہ رہیں تیرے سوغات. اپنی قسمت کے وار گنتا ہوں تاکہ تازہ رہیں تیرے سوغات. ہم نے اپنی حسین راتوں کو اپنے ماضی سے منسلک رکھا تاکہ تابندہ رہ سکے دل میں تیری معصوم بے گناہ تصویر. اور آواز مجھ کو دیتے رہیں تیرے ہونٹوں کے رس بھرے نغمات. اور کانوں میں گنگناتے رہیں. پورا ہو گیا ہے. 1 منٹ ہے آپ کے پاس. 1 منٹ اور ہے تو چلیں 1-2 اشعار سنا دیتا ہوں. غزل کے مطلب پیش خدمت ہے کہ غمزدوں کے حق میں سرتا پاک خوشی بن جائیے. ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر جنتی بن جائیے. غمزدوں کے حق میں سرتا پاک خوشی بن جائیے. ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر جنتی بن جائیے. اور راہ گیروں کو دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ. آپ ایسا ایک چراغ زندگی بن جائیے. راہ گیروں کو دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ. آپ ایسا ایک چراغ زندگی بن جائے. میرا خیال وقت پورا ہو گیا یا؟ جی بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. جی بہت بامانی شاعری اور خوبصورت پیغام دے رہے تھے جناب فاروق نسیم صاحب. اب ہم چلتے ہیں. ہمارے کیپٹن ہیں ہماری ٹیم کے
عموماً کہا جاتا ہے کہ کسی تناور درخت کے سائے میں پروان چڑھنے والے پودے اس قدر نشو نما نہیں پا سکتے، لیکن یہ اس شعری روایت کے امین ہیں، محترم مظفر حنفی کے صاحبزادے ہیں اور بہت خوبی سے نبھا رہے ہیں اور بہت عمدہ شاعری کہتے ہیں، اور اتنے خوبصورت اشعار ہم تک انہوں نے پہنچائے۔ پچھلی 2 نشستوں میں 2 کتابیں ان کی منظر عام پر ہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف جذبات ہی میں بہا مت کرو، صرف جذبات ہی میں بہا مت کرو، کون کہتا ہے دل کا کہاں مت کرو۔ تو دعوت کلام دینا چاہوں گی محترم پرویز مظفر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی شاعری ہم تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ تسنیم صاحبہ۔ تو غزل صاحبہ آپ کی اجازت چاہتا ہوں میں۔ ارشاد ارشاد۔ تو دو شعر پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے عرض کیا ہے اپنی عادت ہے کچھ نہ کہنے کی، اپنی عادت ہے کچھ نہ کہنے کی، حد بھی ہوتی ہے ظلم سہنے کی، حد بھی ہوتی ہے ظلم سہنے کی، اور ظلم کا حوصلہ بڑھاتی ہے، ظلم کا حوصلہ بڑھاتی ہے یہ روایت خاموش رہنے کی، یہ روایت خاموش رہنے کی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور 4 مصرے اور پیش خدمت ہیں۔ عرض کیا ہے آ کر وطن سے دور، آ کر وطن سے دور ترقی کے داؤ میں، آ کر وطن سے دور ترقی کے داؤ میں، پردیس ہم نے باندھ لیے اپنے پاؤں میں، پردیس ہم نے باندھ لیے اپنے پاؤں میں، اور رہ کر عظیم شہروں میں پرویز آج بھی، رہ کر عظیم شہروں میں پرویز آج بھی، دل کا قیام ہے اسی چھوٹے سے گاؤں میں، دل کا قیام ہے اسی چھوٹے سے گاؤں میں۔ اور ایک غزل کے چند اشعار اور عرض کیا ہے اس کو مرنا ہے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، اچھا ہے، اس کو مرنا ہے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، ڈوبنے جا رہا ہے ناؤ کے ساتھ، اس کو مرنا ہے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، ڈوبنے جا رہا ہے ناؤ کے ساتھ، اور ہم نے اسے گلے لگایا ہے، ہم نے اسے گلے لگایا ہے، بات کی جس نے ہم سے تاؤ کے ساتھ، بات کی جس نے ہم سے تاؤ کے ساتھ، اور وہ ستمگر عجب ستمگر ہے، وہ ستمگر عجب ستمگر ہے، لاگ تو ہے مگر لگاؤ کے ساتھ، لاگ تو ہے مگر لگاؤ کے ساتھ، اور لاگ تو ہے مگر لگاؤ کے ساتھ، اور کچھ مزے دھار کاٹنے میں ہیں، کچھ مزے دھار کاٹنے میں ہیں، ورنہ بہتے رہو بہاؤ کے ساتھ، ورنہ بہتے رہو بہاؤ کے ساتھ، ورنہ بہتے رہو بہاؤ کے ساتھ، کچھ مزے دھار کاٹنے میں ہیں ورنہ بہتے رہو بہاؤ کے ساتھ۔ یہ شعر بلکہ شمیم خان صاحب کے نظر کرنا چاہیے تھا، تو ہے نا تو ان کے، اور جانے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، جانے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، 4 درویش ایک الاؤ کے ساتھ، 4 درویش ایک الاؤ کے ساتھ، 4 درویش، اور میزبانی نمک سے کرتے ہیں،
जी मेजबानी नमक से करते हैं जिनको निस्बत है मेरे घाव के साथ। दोबारा कहिए भाई। निस्बत है मेरे घाव बहुत अच्छे, दोबारा कहिए। नमक से करते हैं जिनको निस्बत है मेरे घाव के अरे वाह वाह, जिनको निस्बत है मेरे घाव के साथ। और माशाअल्लाह आपका परवेज, माशाअल्लाह आपका परवेज शेर कहने लगा, माशाअल्लाह आपका परवेज शेर कहने लगा रचाओ के साथ। माशाअल्लाह आपका परवेज शेर कहने लगा रचाओ के साथ। और एक गजल के चंद अशार और पेश करूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। तो अर्ज किया है, जब देखा हमें हाले परेशान में देखा, जब देखा हमें हाले परेशान में देखा, क्या तुमने कभी अपने गिरेबान में देखा? अरे वाह, क्या तुमने कभी अपने गिरेबान में देखा? और शेर सुनिएगा, और शेर सुनिएगा, इंसान में देखी है फरिश्ते की सिफत भी, इंसान में देखी है फरिश्ते की सिफत भी, फिर हमने दरिंदा उसी इंसान में देखा, फिर हमने दरिंदा उसी इंसान में देखा, फिर हमने दरिंदा। और इंग्लैंड में जिस तरह की परियां नजर आईं, इंग्लैंड में जिस तरह की परियां नजर आईं, मंजर कभी ऐसा न परिस्तान में देखा। इंग्लैंड में जिस तरह की परियां नजर आई, मंजर कभी ऐसा न परिस्तान में देखा। और पल भर के लिए शाखों पे लहराए थे परवेज, फिर हमने उन्हीं फूलों को गुलदान में देखा, हमने उन्हीं फूलों को गुलदान में देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने उम्दा अशार सुनाए, और बहुत वक्त का तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज मुजफ्फर साहब। और अब महफिल अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। हमारी सदर साहिबा पिछली 2 नशिस्तों में उन्होंने बखूबी और एहसन इस किरदार को निभाया, इस मकाम को, और बहुत ही खूबसूरत अशार। एक शेर उनका कि हम तो समझे थे किनारा है नहीं डूबेंगे, हम तो समझे थे किनारा है नहीं डूबेंगे, ये किनारा तो समुंदर से भी गहरा निकला। जी मोहतरमा गजल अंसारी साहिबा को मैं दावत कलाम दूंगी। यॉर्कशायर अदबी फोरम की चेयरपर्सन हैं, 3 किताबों की खालिक हैं, बहुत उम्दा शायरी करती हैं, और उससे भी उम्दा उनका तरन्नुम है। और तरन्नुम के साथ कुछ अशार हो जाएं और उनके ताज़ा तरीन कलाम से हम सब मुस्तफीज होते हैं। मोहतरमा गजल अंसारी साहिबा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सब तमाम लोगों का शुक्रिया। पहले मैं थोड़ी सी मेरे ख्याल में बात कर लूँ, क्योंकि आप लोगों ने सदारत के रुतबे पे बैठाया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी पूरी टीम जिन्होंने अपना अपना मयारी कलाम सुनाया, उनकी मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ। हमारे साथ तस्नीम ने बहुत खूबसूरती से निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ये बरतानिया की एक बहुत तवाना आवाज़ हैं और बहुत खूबसूरत शेर भी कहती हैं। और उसके अलावा हमारे साथ सिमी बलास थी, मन्नान कदीर मन्नान साहब थे, मोहम्मद फारूक साहब थे, मोहतरम परवेज मुजफ्फर साहब थे, और मोहतरम इश्तियाक मीर साहब। तमाम ही लोगों ने बहुत खूबसूरत अशार सुनाए। और आज ये सेमीफाइनल में हम पहुंच चुके हैं, तो एक थोड़ी सी बात बनती है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी परवेज मुजफ्फर साहब का कि उन्होंने उनकी कायदाना सलाहियतों का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सुबुक रफ्तारी से ये मुकाबला अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है, और मुमकिन है कि कल बात करने का मौका ना मिले, तो इसलिए मैं आज ये 2-3 बातें करूंगी कि ये एक नया अपने तौर पे ये जो एक जिसे कहेंगे जदीद जो मुकाबला इन्होंने हमारे शमीम साहब ने मुतारिफ कराया है, इसको शुरू में हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब एक स्ट्रक्चर वो सामने आ गया है और लोगों ने भी देख लिया बड़ी सुबुक रफ्तारी से अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवाएं। कल फाइनल है, तो
वादल साहब का कनेक्शन कट गया। ओहो, आ जाएगा एक कॉल कर लेंगे। एक उनसे फिर के लिए एक बड़ी अच्छी तहरीक साबित हो सकती है। चलिए माशाल्लाह। तो ये और हम सब आपके साथ हैं। यॉर्कशायर अदबी फोरम की पूरी टीम यहाँ भी मौजूद है और उसके बाद भी हमारी फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगी, जिस तरह की भी सपोर्ट आपको चाहिए हो। और मैं फिर मुबारकबाद पेश करूंगी कि ये एक बड़ा काम था और शुरू में बिल्कुल वाकई में किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हल्के हल्के रफ्ता रफ्ता ये चीज सामने आ गई। और जो हमारे साथ आज जजेस हैं, सैयद खालिद हुसैन साहब, ये मोहतरम हसन काजमी साहब, और हमारे साथ रेहान सिद्दीकी साहब हैं जो कि दुनिया अदब का के मुंतजमीन में से बड़ा नाम है। इन तमाम लोगों की भी हम शुक्रगुजार हैं कि ये अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं और हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इनके सामने बात कर सकें और हम अपना कलाम पेश कर सकें। तो इनके भी हम बहुत मशकूर हैं। और जो टीम हमारे साथ मौजूद है, यहाँ तक पहुंची है, उनको मुबारकबाद और हैप्पी बर्थडे। उनकी एक जो मेंबर हैं उनकी आज सालगिरह भी है, तो हम तमाम लोगों की तरफ से बहुत साल जिए और आज उनका तोहफा ये हो कि वो जीतें और कल का इंशाल्लाह जो फाइनल होगा उसमें जो भी मौजूद होंगे उनको पेशगी मुबारकबाद। और मेरा ख्याल है कि इतनी गुफ्तगू काफी है, कुछ कलाम, और उसके बाद फिर इख्तिताम हम सुनेंगे अगली टीम को, जो बहुत खूबसूरत चेहरे हमें स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मुंतजिर हैं उनको सुनने के। तो एक पिता पेश खिदमत है। अब आ गए हो तो बैठो, सुनाओ हाल अपना। अब आ गए हो तो बैठो, अब आ गए हो तो बैठो, सुनाओ हाल अपना। यहाँ तो लम्हा ही अपना, ना माह हो साल अपना। यहाँ तो लम्हा ही अपना, न माह हो साल अपना। कहाँ गई वो जवानी, कहाँ गया बचपन। कहाँ गई वो जवानी, कहाँ गया बचपन। दिखा गया है गया वक्त, फिर कमाल अपना। दिखा गया है गया वक्त, फिर कमाल अपना। और एक बिल्कुल ताजा तरीन गजल के चंद अशार जो कहे आज ही के लिए गए हैं, उम्मीद है आप लोगों की समातों पे अच्छा असर डालेंगे। ज़ायरीन इश्क का ये इज्तिमाए आम है। रेहान साहब, ज़ायरीन इश्क का ये इज्तिमाए आम है, खुल्द से निकले थे जो उनका यही अंजाम है। ज़ायरीन इश्क का ये इज्तिमाए आम है, खुल्द से निकले थे जो उनका यही अंजाम है। और हो गए होशो खिरत से कितने बेगाने अबस। होशो खिरत से कितने बेगाने अबस। सर पे पगड़ी लाल है और हाथ में एक जाम है। हो गए होशो खिरत से कितने बेगाने अबस, सर पे पगड़ी लाल है और हाथ में एक जाम है। और जो वफा की राह में कुर्बान हो जाए यहाँ, जो वफा की राह में कुर्बान हो जाए यहाँ, एक वही तो है यहाँ जो मुर्दे इल्जाम है। जो वफा की राह में कुर्बान हो जाए यहाँ, एक वही तो है यहाँ जो मुर्दे इल्जाम है। और दिल के दरवाजे पे कोई आएगा कैसे गजल। दिल के दरवाजे पे कोई आएगा कैसे गजल। दिल के दरवाजे पे लिखा एक ही बस नाम है। दिल के दरवाजे पे लिखा एक ही बस नाम है। शायरीन इश्क का ये इज्तिमाए आम है, खुल्द से निकले थे जो उनका यही अंजाम है। और एक और गजल से चंद अशार। एक लहर सर्द सी मेरे अंदर उतर गई। एक लहर सर्द सी मेरे अंदर उतर गई। मैं अपने इर्द गिर्द के मंजर से डर गई। मैं अपने इर्द गिर्द के मंजर से डर गई। आंखों को और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आंखों को और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक शक्ल सामने थी जिधर भी नजर गई।
शक्ल सामने थी जिधर भी नजर गई, और दिल में थी एक खलिश तो मैं लौटी फिर एक दिन। दिल में थी एक खलिश तो मैं लौटी फिर एक दिन। अपना नहीं रहा था, अपना नहीं रहा मेरा, फिर भी मैं घर गई। दिल में थी एक खलिश तो मैं लौटी फिर एक दिन। अपना नहीं रहा मेरा, फिर भी मैं घर गई। खुद से बिछड़ गई, खुद से बिछड़ गई, तुझे ढूंढा तमाम उम्र। खुद से बिछड़ गई, तुझे ढूंढा तमाम उम्र, फिर यूं हुआ जवानी न जाने किधर गई। खुद से बिछड़ गई, तुझे ढूंढा तमाम उम्र, फिर यूं हुआ न जाने जवानी किधर गई। खुद को बुला दिया कभी उफ तक नहीं किया, खुद को भुला दिया कभी उफ तक नहीं किया। तेरी हर एक बात गजल बेअसर गई। खुद को बुला दिया कभी उफ तक नहीं किया, तेरी हर एक बात गजल बेअसर गई। आग, चंद और अशार। आग झपकेगी से आप सुनाइए। मेरे पास टाइम कितना है? आग झपकेगी तो ये लम्हा निकल जाएगा, आग झपकेगी तो ये लम्हा निकल जाएगा। वक्त भी रेत है मुट्ठी से फिसल जाएगा। आग झपकेगी तो ये लम्हा निकल जाएगा, वक्त भी रेत है मुट्ठी से फिसल जाएगा। दिल की ताकत ही बचा सकती है रिश्तों को फकत, दिल की ताकत ही बचा सकती है रिश्तों को फकत, वरना हर जज्बा यहाँ राख में ढल जाएगा। वरना हर जज्बा यहाँ राख में ढल जाएगा। और छुप ना पाया कोई राज उनकी अदाकारी का, छुप ना पाया कोई राज उनकी अदाकारी का। वो समझते थे कि जादू यूं ही चल जाएगा, वो समझते थे कि जादू यूं ही चल जाएगा। आग झपकेगी तो ये लम्हा निकल जाएगा, वक्त भी रेत है मुट्ठी से फिसल जाएगा। दो शेर तरन्नुम से आप लोगों की समातों की नजर करती हूँ, टाइम पूरा हो जाए। कोई शिकवा न कुछ इजहार किए जाएंगे, कोई शिकवा न कुछ इजहार किए जाएंगे। हम तो बेवजह यूं ही प्यार किए जाएंगे। कोई शिकवा पारसाई से है मशरूत मोहब्बत अपनी, पारसाई से है मशरूत मोहब्बत अपनी, फिर भी मजबूर हैं इकरार किए जाएंगे। मजबूर हैं इकरार किए जाएंगे। डूब जाए जो ये नैया तो ताजुब भी नहीं, डूब जाए जो ये नैया तो ताजुब भी नहीं। हम किनारे को ही मझदार किए जाएंगे, हम किनारे को ही मझदार किए जाएंगे। मक्ता पेश खिदमत। बात करना तुझे मिलना नहीं मुमकिन, लेकिन बात करना तुझे मिलना नहीं मुमकिन, लेकिन
कोशिशें हम यूं ही 100 बार किए जाएंगे, क्या बात, कोई शिकवा। हमें मक्ता छोड़ देते हैं, टाइम खत्म हो गया होगा। बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया। वाह। So over to Shamim Sahab now. खालिद भाई कुछ 2-4 मिनट चाहिए या कि शुरू करें अगला, जैसा है आप ये जजेस? ये पहले थोड़ा सा मैं असल में सर मैं पता नहीं क्यों स्क्रीन पर नहीं आ रही हूँ अपनी हो भाई, तुम स्क्रीन पे हो, आप आ रहे हैं, मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम खुद नहीं दिखाई दे रहे हैं अपने आप को। नहीं ठीक है, आप हमें दिख रही हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं, इस वजह से जो है जब आप पढ़ेंगी तो दिखेंगे, क्योंकि जब ज्यादा लोग रहता है, ये देखिए अब दिख रही हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पता नहीं कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। आवाज नहीं तुम्हारी गड़बड़ नहीं है, दिख रही है। जी तो जारी रख सकते हैं, और अगर कोई वक्फा लेना चाहे तो ले सकता है। नहीं बस जजेस को कोई टाइम ना चाहिए हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खालिद भाई आगे बढ़े। जी जी आगे बढ़िए। ठीक है सर, ठीक है। रुस्तम भाई ओवर टू यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। किसी को एक सदर बना लें। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ वजाहत की ज़रूरत नहीं है, सभी लोगों को ये मालूम है कि आज सेमीफाइनल में हम लोग पहुंचे हुए हैं जी। और टीम इंग्लैंड ने भी बहुत खूबसूरत अशार भी सुनाए जी, और उम्मीद करता हूँ कि सामीन को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूं शमीम भाई का, जिन्होंने वाकई बड़ी मेहनत से अपने इस इवेंट को यहाँ पहुँचाया, जो उम्मीद से कहीं ज़्यादा बाला थी। और आज मेहमान खुसूसी भाई बड़े भाई रेहान सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में हम लोग कलाम करेंगे, ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र है, बायसे इफ्तिखार है। चीफ गेस्ट साहब हैं और सैयद खालिद साहब जो आज जजेस हैं माशाल्लाह, उनका खैर मकदम, और हसन काज़मी साहब बड़े भाई भी मौजूद हैं। इन तमाम हजरात के मौजूदगी में मैं अपनी टीम ब्लू इंडिया का एक छोटा सा तारुफ करा दूं कि आज हमारे टीम में फ़खरी मेरठी साहब मौजूद हैं, निगत अमरोही साहिबा मौजूद हैं, सलीम ताबिश साहब मौजूद हैं, फरमूद इलाहाबादी तंज़ो मज़ा का एक नाम वो मौजूद है, निगत खान साहिबा जो हमारी टीम की वाइस कैप्टन है मौजूद हैं, डॉक्टर ज़िया टोंकी साहब मौजूद हैं, रीता अदा साहिबा दिल्ली से मौजूद हैं, शाकिर अली शाकिर नौजवान शायर भी हमारी टीम में मौजूद है। हजरात, ज़िक्र सरवरे कायनात से हम अपनी बज़्म का आगाज़ करते हैं और सैरी सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं 4 मिसरे पढ़े देता हूँ सरवरे कायनात की शान जी। इंशाअल्लाह आप लोग मौजूद होंगे जी। मतलब मुलाहिज़ा कीजिए जी, इरशाद है। क़ब्ल इसके कि मैं आज अपनी ब्लू इंडिया टीम के सदारत का भी ऐलान करता चलूँ। आज इस टीम में सदारत फरमा रहे हैं जनाब फ़खरी मेरठी साहब, हम लोग तारीफ करते हैं। सदारत करते हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग इसकी तारीफ करें। आइए हज़रात, बिना किसी तमहीद के 4 मिसरे में पढ़े देता हूँ नाते फ़ख्र के, तमाम लोगों की तवज्जो खुसूसी चाहिए। मैं बता सकता हूँ चेहरा देख कर, 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 कौन लौटा है मदीना देख कर, कौन लौटा है मदीना देख कर, मैं बता सकता हूँ चेहरा देख कर, कौन लौटा है मदीना देख कर, पढ़ के लोगों
उनकी आंखें चूम लो, पढ़ के लोगों पढ़ के लोगों उनकी आंखें चूम लो, आए हैं जो उनका रोजा देख कर, आए हैं जो उनका रोजा देख कर, पढ़ के लोगों उनकी आंखें चूम लो, आए हैं जो उनका रोजा देख कर, मैं बता सकता हूँ चेहरा देख कर, कौन लौटा है मदीना देख कर। क्या बात है बाबा, शुक्रिया, बड़ी नवाज। जिक्र सरवर कायनात से बज़्म का आगाज हुआ। आइए अब ताखीर कैसी, मैं अपनी टीम के एक खूबसूरत और नौजवान शायर से अपनी इस बज़्म का आगाज करना चाहता हूं, जो शेरी अंदाज में करेंगे। बेहतरीन तरन्नुम के मालिक, गोरखपुर शहर से उनका ताल्लुक है। मैं उनके लिए बस ये 4 मिसरे पढ़ के उन्हें दावत सुखन दूंगा कि कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बेकार होते हैं, कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बेकार होते हैं, कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बेकार होते हैं। रेहान साहब बताओ, खास शेर देखिए कि कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बेकार होते हैं, मुकम्मल मजमूए में शेर 2 या 4 होते हैं। क्या बात है, मजमूए में शेर 2 या 4 होते हैं। खुशी का लम्हा होता है तो एक मिसरा नहीं होता। तमाम शायरों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि खुशी का लम्हा होता है तो एक मिसरा नहीं होता। मियाँ जब चोट लगती है तो फिर अशार होते हैं, होते हैं। इन्हीं मित्रों के दिल में मैं छोटे भाई खूबसूरत तरन्नुम के मालिक जनाब शाकिर अली शाकिर साहब को आवाज दूंगा कि वो आए अपना कलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रुस्तम साहब और मोहतरम शमीम साहब। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा, कुछ देर हो गई कनेक्ट करने में, और एक मतला और 2 शेर से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। कदरे मोहतरम की इजाजत चाहते हुए कि अर्ज किया है कि तेरी ख्वाहिश तेरी हसरत पे हंसी आती है, तेरी ख्वाहिश तेरी हसरत पे हंसी आती है, दिले नादा तेरी चाहत पे हंसी आती है, तेरी ख्वाहिश तेरी हसरत पे हंसी आती है, दिले नादा तेरी चाहत पे हंसी आती है, दीन भी छूट गया हाथ से दुनिया भी गई, दीन भी छूट गया हाथ से दुनिया भी गई, हम तो ऐसी मोहब्बत पे हंसी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और शूर जिस दिन से हुआ है तेरी ताकत का गुरूर, तेरी उतरी हुई सूरत पे हंसी आती है। शूर जिस दिन से हुआ है तेरी ताकत का गुरूर, तेरी उतरी हुई सूरत पे हंसी आती है, तेरी रुसवाई का सामान है फितरत तेरी, तेरी आदत तेरी खसलत पे हंसी आती है। गजल का मतलब मैं तरन्नुम से हाजिर कर रहा हूँ, आपकी दुआएं चाहूंगा मोहतरम हज़रात। मतलब अर्ज किया है कि किसी की याद आती है सताती है, किसी की याद आती है सताती है, किसी की याद आती है सताती है, मुझे शब भर जगाती है रुलाती है, रुलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शब भर जगाती है रुलाती है। और शेर भी हाजिर कर रहा हूँ। बदलता है हजारों
करवटे ये दिल बदलता है हजारों करवटे ये दिल बदलता है हजारों करवटे ये दिल जब पलके उठाती है गिराती है पलके उठाती है गिराती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रुस्तम भाई और फरमू साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। शजर कोई हो इससे कुछ नहीं मतलब, शजर कोई हो इससे कुछ नहीं मतलब, शजर कोई हो इससे कुछ नहीं मतलब, हवा सबको हिलाती है डुलाती है। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी आप मोहतरम हजरात की समातों के हवाले। ये ममता माँ की है रह कर जो खुद भूखी, ये ममता माँ की है रह कर जो खुद भूखी, ये ममता माँ की है रह कर जो खुद भूखी, कि बच्चों को खिलाती है पिलाती है, बच्चों को खिलाती है पिलाती है। ममता पर नए अंदाज में शेर, वाह वाह वाह, ममता पर नए अंदाज में। ये ममता माँ की है रह कर जो खुद भूखी। और ये शेर भी आपकी समातों के हवाले। जी, ये ममता माँ की है रह कर जो खुद भूखी, ये ममता माँ की है रह कर जो खुद भूखी, कि बच्चों को खिलाती है पिलाती है। मोहब्बत सामने रहती है खुल कर के, मोहब्बत सामने रहती है खुल कर के, मोहब्बत सामने रहती है खुल कर के, अदावत मुँह चुराती है बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। और अब चलते हैं जी मोहतरम। जी जी पढ़ता हूँ। मोहब्बत सामने रहती है खुल कर के, मोहब्बत सामने रहती है खुल कर के, अदावत मुँह चुराती है छुपाती है, अदावत मुँह छुपाती है चुराती है। और मक्ता भी आपकी समातों के हवाले करता हूँ। ज़माने को ज़बां वो हो चाहिए शाकिर, ज़माने को ज़बां वो हो चाहिए शाकिर, ज़माने को ज़बां वो हो चाहिए शाकिर,
जो गीत उल्फत के गाती है सुनाती है, जो गीत उल्फत के गाती है सुनाती है, आती है सताती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहे थे जनाब शाकिर अली शाकिर साहब जी, शहर गोरखपुर से, जिनका ताल्लुक था। आइए हजरात, हम आपको अब शहर दिल्ली लिए चलते हैं। एक खूबसूरत शायरा से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिनको कोई भी शायर देख ले तो बस उसकी गजल ना हो तो वो शायर नहीं है। ये 4 मिसरे पेश करता हूँ राशिद इलाहाबादी की। सारे मंजर नीले हो गए, सारे मंजर नीले हो गए, लोग बड़े जहरीले हो गए, लोग बड़े जहरीले हो गए, सारे मंजर नीले हो गए, लोग बड़े जहरीले। ये तमहीद का शेर है, ये शेर रीता अदा साहिबा के लिए मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि सारे मंजर नीले हो गए, लोग बड़े जहरीले हो गए, और पनघट पे छाई वीरानी, हाथ किसी के पीले हो गए। पनघट पे छाई वीरानी, हाथ किसी के पीले हो गए। इन्हीं मिसरों के साहिब हैं। मैं आवाज दूंगा बड़ी बहन मोहतरमा रीता अदा साहिबा कि वो आए अपना कलाम पेश करें। जी बहुत शुक्रिया रुस्तम भाई, और सभी नाजरीन सामीन को हमारा आदाब। सदर मोहतरम की इजाजत तलब करते हुए जी हम अपनी गजल आप सभी के नज़्र करते हैं, मुलायजा फरमाइएगा। इरशाद है, इरशाद। मतलब पेश खिदमत है। जी इरशाद। मेरा दिल जो यूं जगमगाया हुआ है, मेरा दिल जो यूं जगमगाया हुआ है, कोई घर में मेहमान आया हुआ है। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या मतलब पढ़ दिया भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी की नजर है कि मेरा दिल जो यूं जगमगाया हुआ है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। कोई घर में मेहमान आया हुआ है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या कहना। और चरागे मोहब्बत बुझा ना सकोगे, चरागे मोहब्बत बुझा ना सकोगे, लहू इसमें दिल का मिलाया हुआ है। क्या बात है, चरागे मोहब्बत बुझा ना सकोगे, लहू इसमें दिल का मिलाया हुआ है, और उसी फूल की ये महक है हवा में, उसी फूल की ये महक है हवा में, इसे पत्तियों ने छुपाया हुआ है। बहुत अच्छे, और दिलों में अदावत के तूफान उठे हैं, दिलों में अदावत के तूफान उठे हैं, लबों पर तबस्सुम सजाया हुआ है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिलों में अदावत के तूफान उठे हैं, लबों पर तबस्सुम सजाया हुआ है। और शेर बतौर खास, मोहल्ले की सब खिड़कियां खुल गई हैं, मोहल्ले की सब खिड़कियां खुल गई हैं, गली में मेरा चांद आया हुआ है। अरे क्या कहना, गजल हो रही है, क्या बात है, वाह वाह। मोहल्ले की सब खिड़कियां खुल गई हैं, गली में मेरा चांद आया हुआ है, और नजर लग गई है, नजर लग गई है जमाने की शायद, नजर लग गई है जमाने की शायद, जो अपना थकल तक
पराया हुआ है। और मक्ता भी समाप्त करें। जी इरशाद आली। अदा हम में खुददारी अब भी है बाकी। अदा हम में खुददारी अब भी है बाकी, ये सरमाया हमने बचाया हुआ है। और मेरा दिल जो यूं जगमगाया हुआ है, कोई घर में मेहमान आया हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक और मुकम्मल गजल समाप्त करें। जी इरशाद। मतलब आप सभी की नजर करते हैं। इरशाद। मेरा हम सफर, मेरा हम नफस, मेरा हम नवा मेरे साथ है। वाह 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 भाई वाह, क्या कहें। मेरा हम सफर, मेरा हम नफस, मेरा हम नवा मेरे साथ है। जहाँ चाहूं चेहरा संवार लूं, मेरा आईना मेरे साथ है। क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या अशार मेरा हम सफर, मेरा हम कमाल कर दिया, वाह वाह वाह। मेरा हम नवा मेरे साथ है। कहाँ चाहूं चेहरा संवार लूं, मेरा आईना मेरे साथ है। और शेर देखेगा। जी इरशाद। न वो जाम है न सुरूर है, न वो जाम है न सुरूर है, तो करीब रह के भी दूर है। क्या बात है, वाह वाह। न वो जाम है न सुरूर है, तो करीब रह के भी दूर है। मेरे दिल को ऐसा गुमान है, मेरे दिल को ऐसा गुमान है, कोई दूसरा मेरे साथ है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और अगला शेर समाप्त करें। कि वही बेकली, वही बेबसी, वही उलझने तेरे बाद भी। वही बेकली, वही बेबसी, वही उलझने तेरे बाद भी। वही महफिले, वही रत जगे, वही मशगला मेरे साथ है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहें, का जवाब नहीं है बाबा, क्या बात है बाबा। और शेर बतौर खास कि मुझे संग व खिश्त का डर नहीं, मुझे संग व खिश्त का डर नहीं, किसी रहनुमा की खबर नहीं। मुझे संग व खिश्त का डर नहीं, किसी रहनुमा की खबर नहीं। मेरी रह गुजर से जुड़ा हुआ तेरा नक्शे पा मेरे साथ है। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अशार से नवाज रही हैं रिदा साहब। और शेर देखेगा कि न हबीब से न रकीब से न तबीब से न नसीब से। अरे वाह, क्या मिसरा है भाई, वाह। न हबीब से न रकीब से न तबीब से न नसीब से, मुझे अब किसी से गिला नहीं, मेरा देवता मेरे साथ है। क्या बात है। न हबीब से न रकीब से न तबीब से